नमस्कार, आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूँ। पेश आज के मुख्य समाचार। ध्यान सिंह मंड ने किया 23 को पूरा पंजाब बंद का ऐलान। इंडियन ऑयल के गुरुनगरी में स्थित सभी पेट्रोल पंप हुए स्वचालित। सरबत खालसा के आयोजकों को देशद्रोही बता जेल में बंद करना सरकार का गलत कदम है, कहा धर्मवीर गांधी ने। अब खबरें विस्तार से। देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किए गए सरबत खालसा की ओर से नियुक्त श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार ध्यान सिंह मंड को पुलिस ने भारी सुरक्षा प्रबंधों के बीच अमृतसर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट हरसिमरन कौर की कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस की ओर से ध्यान सिंह मंड को 14 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजने का निवेदन किया गया था। वहीं ध्यान सिंह मंड कोर्ट से बाहर निकलते समय पंजाब बंद कहते हुए सुनाई दे रहे थे, लेकिन ध्यान सिंह मंड की ओर से पेश वकील और सरकारी वकील के बीच हुई बहस के बाद कोर्ट ने ध्यान सिंह मंड को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। ध्यान सिंह मंड के वकील अमितपाल सिंह ने बताया कि ध्यान सिंह मंड की ओर से 23 को पूरा पंजाब बंद का ऐलान भी कर दिया गया है। पुलिस रिमांड मंगिया सी, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਤੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਮ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੀਗਾ। 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਰਾ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 12-11 ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ SHO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹ ਨਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। तरनतारन में सात संस्था की तरफ से 7वां जागरूक समागम साबका DJP और संस्था के चेयरमैन सतीश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में करवाया गया, जिसमें मुख्य मेहमान कैबिनेट मंत्री श्री अनिल कुमार जोशी विशेष तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर जिला कोऑर्डिनेटर रमनीक सिंह खेड़ा की तरफ से आए हुए मेहमानों का स्वागत किया गया। इस दौरान 5000 स्कूल्स के बच्चों को फैक्ट्री नियमों को पालन करने संबंधी कसम उठवाई गई। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर बलविंदर सिंह धालीवाल, FPN के बेदी चंद्र कुमार अग्रवाल, राजेश राजा जोशी आदि उपस्थित थे। मैं समझदा कि आने वाले समय च इन्नी अवेयरनेस हो जूगी कोई सड़क दे उत्ते जिहड़ा एक्सीडेंट वाला जिहड़ा वा पेशेंट मरूगा नहीं जिन्नी ये जिहड़ा इन्हां ने प्रण लिया अज। बाकी डिसिपलिन अपनी लाइफ च हिस्सा बनाना चाहिए डिसिपलिन, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਮਨੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਮਲ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਸ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਇਹ ਫਿਰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ
कि ट्रैफिक नियमां दा जिथे पालन करो, उत्थे अगर कोई एक्सीडेंट दिसदा किसी सड़क ते असीं ओहदी जो हेल्प कर सकते हैं वो करिए। पंप से गाड़ियां स्कूटर में पेट्रोल डलवाते समय कम पेट्रोल डालने की शिकायत अब गुरुनगरी के पेट्रोल पंपों में नहीं रहेगी। इंडियन ऑयल ने गुरुनगरी के 30 पेट्रोल पंपों को अति आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर स्वचालित बिलिंग के साथ जोड़ दिया है। इंडियन ऑयल के चेयरमैन बी अशोक ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ता और डीलर दोनों को लाभ होगा। डीलर अपने पंप से कितना भी दूर क्यों ना हो, उसे इस व्यवस्था के माध्यम से अपने स्टॉक व्यवस्था और सेल के बारे में जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। मैं अशोक हूँ, मैं चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हुआ है, अमृतसर में हम इंडियन ऑयल का सारा आउटलेट्स ऑटोमेट किया है और उसका लॉन्चिंग फंक्शन अभी हो रहा है। एंड इसके बारे में कस्टमर्स को बहुत सुविधा होगा, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी का उनका बहुत कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो सकता है। I think we are very happy. Indian Oil has 30 outlets, 30 outlets है अमृतसर सिटी में, और अमृतसर is the 42nd city in the country where all Indian Oil outlets have been fully automated. हमारा ये सिटी ऑटोमेशन यहाँ चंडीगढ़ में लॉन्च हुआ था 2-3 साल पहले। चंडीगढ़ was the first city in the entire country where all outlets of Indian Oil were automated. अभी अमृतसर में where lot of floating population is there, more than 100,000 customers are visiting the Golden Temple every day. This will build a lot of customer confidence in the Indian Oil outlets. We already enjoy the reputation of being a very trusted brand in the country, and a lot of customers are patronizing Indian Oil. We think that this is one more dedication that we are doing for our customers. India में 9,000 plus outlets है fully automated, in which 42 cities है, major cities where all the outlets have been automated. इसमें कस्टमर्स को एक्चुअली नंबर 1 कंप्यूटराइज्ड बिलिंग मिलेगा, बिल मिलता है, and they are able to keep track of the fuel which is they have taken along with the amount. And the second thing is, in terms of confidence, if they have any grievance, they can always come back to the particular outlet and then trace their transaction. So because of that, the confidence in terms of both quality as well as quantity for the customer goes up. There is a lot of benefit for the dealers. They are able to keep much better control of the outlet because of the automation system. उनका stock के बारे में, उनका sales के बारे में सब control is much better. The dealers are also in a position to run much better customer schemes. आज से in all outlets it will be automated billing, which means once he gets a fuel, the bill comes out automatically. Every customer will be given a printed bill at the retail outlet, and which he can keep track of. And in case there is any problem later on that they feel that they have not got the quantities, they can always go back to the outlet and then track, because all their transactions are captured at the back end in the computer. So the customer can always keep track of their transactions. So this is the visible thing which they have seen, and this is uniformly across all the outlets of Indian Oil in Amritsar city. So anywhere that customer goes, he will have the same level of service which is available across the city. See, in India, of course, while we can, technology today provides for self-service, but the customers also are today happy with the service provided at the forecourt by the attendants, and so this is also providing a lot of employment to a number of people. We are trying to improve the quality of service through the attendants. The attendants are also becoming more tech savvy, and they bring in several other advantages besides only servicing. Customers are also expecting things like, the air service in the outlets. Several of the outlets offer free nitrogen filling for their tires. There are also other conveniences like the ATM services, the non-fuel services which are there. So availability of attendants are there, but moving forward, probably in future, if there is a demand like this for self-service, we can also move towards that. पटियाला से आम आदमी पार्टी के सांसद धर्मवीर गांधी आम आदमी
वॉलेंटियर फ्रंट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने जहां पंजाब सरकार की पिछले 9 वर्षों की कारगुजारी पर सवाल उठाए, वहीं उन्होंने सरबत खालसा के आयोजकों को देशद्रोही बताकर जेल में बंद करने की घटना को भी सरकार का गलत काम करार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल की तरह आम आदमी पार्टी भी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी बनकर रह गई है। 2017 के चुनाव में आम आदमी वॉलेंटियर फ्रंट के बैनर तले चुनाव लड़ने संबंधी पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन वॉलेंटियर फ्रंट जैसा फैसला करेगा वह उस पर अमल करेंगे। पंजाब विच हालात ने और ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਮ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਾਦਲ 1 ਤੇ ਬਾਦਲ 2 ਸਰਕਾਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਗਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਫੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ਦਰੋਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਹਿਜ਼ ਦੇ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਦਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਫਰੰਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰੰਟ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਸੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛਿੜਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ 4 ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਥੰਮ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਸਵਰਾਜ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਰਾਜ ਵਰਡ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਫਰੰਟ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਲੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਮਤੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੈ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਫਰੰਟ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਕਹਿਣਾ बड़ा मुश्किल है। पंजाब के दीनानगर में 27 जुलाई 2015 को थाने पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को दहला दिया था। 12 घंटे तक चली मुठभेड़ में एक एसपी समेत 7 लोगों ने शहादत का जाम पिया। सरकार ने शहीदों को सम्मान और माली मदद दी, पर सबसे पहले आतंकियों की गोली का शिकार होने वाले कंवलजीत का एक बाजू डॉक्टर ने काट दिया था और दूसरा बाजू तथा शरीर लगभग नकारा हो चुका है। कहा कि ना सरकार ने
ना प्रशासन ने तथा ना ही किसी सामाजिक संस्था ने उनकी मदद की। लाखों रुपए इलाज पर खर्च हो चुके हैं। कर्ज में डूबे इस कंवलजीत को अगर सरकार या सामाजिक संगठन आर्थिक मदद नहीं देती तो इसके परिवार की जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अब उनके परिवार की जिंदगी सरकार के रहमो करम पर है। अब देखना ये है कि आतंक के शिकार इस पीड़ित को सरकार इंसाफ। कंवलजीत सिंह मथारू का भाई बोल रहा हूँ। वो पहला विक्टिम है जो कि मिलिटेंटों ने उस पर अटैक किया। अटैक करने के बाद उसका गाड़ी छीन के वो ले गए कि ये मरा हुआ समझकर इसकी गाड़ी छीन के ले गए। उसके बाद उसको हमने अमनदीप हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहाँ उसका इलाज के दौरान एक बाजू काटना पड़ा और दूसरा उसका हाथ जो है वो टूटा हुआ है। तो उसके बाद हमने ये 2 महीने के वहाँ रहने के बाद हमने इसका काफ़ी वहाँ इलाज कराया है और सरकार ने हमारी जो मदद की है उसका भी जो पैसा है वो भी इसी की इलाज में ही ख़त्म हो गया है। उसका एक मंदबुद्धि बच्चा है जो कि जन्म से मंदबुद्धि बच्चा है। दूसरा इसके एक बेटी है जो कंप्यूटर इंजीनियर है, वो भी फ्री बैठी है। और हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि इसके मंदबुद्धि बच्चे को पेंशन लगाई जाए और इसका जो अपना इसकी बेटी है उसको एक नौकरी दी जाए। अभी वो अमनदीप हॉस्पिटल में 2.5 महीने रहने के बाद अब इसको बरोल हॉस्पिटल में हमने दोबारा दाखिल कराया है और वहाँ भी इसकी अभी इलाज चल रहा है। हमारा सारा पैसा जो भी सरकार ने हमारा मदद किया था वो सारा खर्च हो चुका है। इसका कारोबार जो है बिजनेस वो ठप हो चुका है। कमाने वाला घर में कोई नहीं है। तो हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि इसकी बेटी को कोई नौकरी दी जाए जाके अपना आने वाला जीवन अगला जो है वो शांतिपूर्वक बिता सके। ये जो पेशेंट हमारे पास कंवलजीत सिंह दाखिल है, ये दीनानगर गोलीकांड का पेशेंट है और इस पेशेंट की तब से काफ़ी इलाज चल रहा है। एक साइड की बाजू इसकी जा चुकी है और ये किसी भी तरह काम करने के लायक नहीं है ये वाली बाजू। और दूसरी साइड की बाजू जो है वो अभी काफ़ी क्रश है, काफ़ी ज़्यादा बोन्स जो हैं वो डैमेज्ड हैं और इसको अभी मल्टीपल सर्जरीज होनी है। कितना काम करेगी अभी तक कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। और फिलहाल ये जो पेशेंट है अभी किसी काम करने के लायक है नहीं। मैं सर से मंडी जाने सब्जी लैन गया। मैं कार स्टार्ट की है, कार स्टार्ट करके मैं मुड़ी है। अगों 3 जने आर्मी यूनीफॉर्म चढ़ गए डिवाइडर उपर। मैनू उन्होंने कोई रोकया नहीं, कोई लैन नहीं देनी, सीधी गोली चालू कर दी। मैनू काफ़ी गोलियां मारियां जी मेरे दोवां बाहों से शोल्डर से लगे ने। मैंने गड्डी करके बाहर सुट्टा, अपनी मार के सुट्टा। मैं फिर निकल गया गड्डी लैके तो मैं उदा हॉस्पिटल अमृतसर से पहला उत्थे रहा 2 महीने 2-2.5 महीने उत्थे लगे मैनू। तो हूँ इतने मैं अबरोड हॉस्पिटल गुरदासपुर मैं नकारा हो गया। मेरी एक बांह कटी गई है। मुंडा मेरा मंदबुद्धि है, 20-21 साल उम्र हो गई उसकी। बेटी मेरी पढ़ी लिखी है और बस सरकार ने नौकरी प्राइवेट कहा सी, वो हाले तक कुछ नहीं होया। बाकी तकरीबन सारे बंदे इन्होंने 10-10 लाख रुपये देता तो नौकरी भी देती। मैंने जो पैसे थे और मैं अपने कोलों ला के उपरों ला के अपने कोलों भी ला रहा। बाकी मेरे भरा मदद कर रहे हैं तो होर मैंने हले कोई नहीं, कोई मेरा पेंशन का कुछ नहीं होया। बिल्कुल कारोबार मेरा ठप्प आ तो बड़ी मुश्किल है जीवन बताना। कादियां के बस स्टैंड में मियां नसीम जी बंगाली की तरफ से काले इल्म के साथ समस्याओं का हल करने का लालच देकर लोगों को ठगा जा रहा है। इस संबंधी ठगी की शिकार हुई और सलविंदर कौर ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते बताया कि उक्त ने मुझसे 2000 रुपये लिए थे और कहा था कि 11 दिनों में आपकी जगह बिक जाएगी, परंतु आज कुल 1.5 महीने हो गए हैं लेकिन जगह अभी तक नहीं बिकी। उन्होंने उक्त पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस पर जब बंगाली से बातचीत की गई तो उसने बताया कि वह काले इल्म से लोगों के काम करता है। यहाँ जिक्र योग है कि ऐसे ज्योतिषियों और तांत्रिकों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए जो लोगों को गुमराह कर उन्हें ठगते हैं। इनको सख्त सजा भी देनी चाहिए। यही कहता थां विखा दांगा, मैं तो थां विखाया ही नहीं है। जिद्दी काम पैसे ले ले थां विखाउंदा ही नहीं। हाँ थां विक जाएगा 11 दिन जी, 11 छड्ड के 1.5 महीना हो गया, 2 विका ही नहीं, खराब कर दिया। कितने पैसे ले ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹਨੇ 2000 ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ। ਫਰੋਡ ਕੀਤਾ और कोई कार्रवाई होनी चाहिए जे इदा करते फरोड मार कर काम करते हैं ना। इसमें क्या बात होगी? काले इल्म से करते हैं, नूरी इल्म है। सर बोल तो दिया है कुछ ना कुछ होगा। एक बार आए वो दोबारा आए भी नहीं मेरे पास में। नहीं 3-4 वाली 4-5वीं बारी आई है मैं। वो तो एक ही बार आए ना मेरे पास में। नहीं हाँ मारने का काम नहीं करते। सर सुनो तो सही, फ्रॉड कर रहे हो उसके साथ? फ्रॉड कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या फ्रॉड कर रहा हूँ मैं इनके साथ? कितने दिए? 2000 रुपए दिए। अरे उनको बुलाया, ये सामान ये लेके जाते जो भी चाहिए। मैंने उनको बुलाया, वो आए नहीं है मेरे पास में। वो
कोई आए ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस लाने की दिशा में कई पहल करने के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सुधार भारत में बदलाव लाने के लिए लक्ष्य की दिशा में बढ़ने का एक मार्ग है। पंजाब के डिप्टी कमिश्नर सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए उसे आतंकियों का सहयोगी बताया है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस पंजाब में 80 के दशक जैसा माहौल बनाना चाह रही है। मलेशिया में आसियान सम्मेलन चल रहा है, जिसमें कई बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग ले रहे हैं। पीएम श्री नरेंद्र मोदी भी मलेशिया पहुंचे हैं। ऐसे में ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि आईएसआईएस के आत्मघाती हमलावर हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ चौथे वनडे मैच में इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉस बटलर ने महज 46 गेंदों पर बहुत अच्छी शतक जड़कर अपने देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड फिर से अपने नाम कर लिया है। संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म बाजीराव मस्तानी में फैक्ट से छेड़छाड़ किए जाने के आरोपों पर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि ये डायरेक्टर भंसाली के नजरिए से दिखाई गई कहानी है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ध्यान सिंह मंड ने किया 23 को पूरा पंजाब बंद का ऐलान। इंडियन ऑयल के गुरुनगरी में स्थित सभी पेट्रोल पंप हुए स्वचालित। सरबत खालसा के आयोजकों को देशद्रोही बता जेल में बंद करना सरकार का गलत कदम है, कहा धर्मवीर गांधी ने। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।